سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شریف خان، چیئرمین عوامی بیداری پارٹی گلگت بلتستان۔ موجودہ کئی ایام پہلے جو ڈس انفو لیب رپورٹ شائع ہوئی تھی بین الاقوامی اداروں کی طرف سے، اس کے بعد ہمارے گلگت بلتستان کے قوم پرست بانی شہید مرحوم حیدر شاہ کے فرزند مہدی شاہ ان کی ٹریپ میں آئے اور اس وقت ان کی جان کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ہندوستانی جو اعلی کار ہیں، جو ایجنٹ ہیں اور لوکل سطح پر جو ان کے سہولت کار ہیں، جیسا کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، گلگت بلتستان سی پیک، دیامار بادشاہ ڈیم، سکردو گلگت روٹ اور کارگل وار کے بعد دنیا کی نظر میں عیاں ہو کر سامنے آیا۔ مختلف طاقتوں کے گلگت بلتستان کے اندر اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ جموں کشمیر سے وابستہ ہے۔ اسی بنیاد پر جو آزاد کشمیر، جموں کشمیر سے جو بین الاقوامی ممالک میں، بیرونی ممالک میں پولیٹیکل اسائلم پر ہیں، ایسے انڈیا کے پے رول پر جو عناصر ہیں، وہ گلگت بلتستان کے عوام، سیاسی رہنماؤں، سماجی رہنماؤں اور طالب علموں سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ ایسی ایک صورتحال میرے ساتھ بھی پیدا کی گئی۔ مجھ سے گلگت بلتستان سے کہ میں وحدت کی اکائیوں کی بحالی اور خود مختار کشمیر کے نظریے پر سردار شوکت علی کاشمیری، امجد طیب مرزا اور سجاد راجہ، جن کے نام ڈس انفو لیب رپورٹ میں عیاں ہو چکے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا۔ 1 سال تک ان سے ہمارا رابطہ رہا۔ وہ مختلف ہم سے مذاکرات کرتے رہے کہ گلگت بلتستان سے ہماری ہمدردیاں ہیں۔ گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے، مگر ہم بھی اپنی طرف سے ان چیزوں کو آبزرویشن کرتے رہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ گلگت بلتستان کے لیے کون مخلص ہیں اور کن کے عزائم ناپاک ہیں۔ اس بیچ میں سجاد راجہ نے مجھے ایک اسپانسر لیٹر بھجوایا، جو کہ یو کے سے انہوں نے مجھے اسپانسر کیا۔ مجھے UN کا انویٹیشن بھجوایا اور انہوں نے مجھے یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کا موقع فراہم کرنے کا اور یہ یقین دہانی کروائی کہ میرے تمام اخراجات کی وہ ذمہ داری لیں گے۔ مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام مشکل حالات میں ہوں، بھلے آئینی پیچیدگیوں کا شکار ہو، مگر پاکستان سے والہانہ اور عقیدت مندانہ محبت رکھتے ہیں اور ان گلگت بلتستان کی تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے پاس ان جو موجودہ ڈس انفو لیب رپورٹ میں جن کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کم از کم 20 پردہ نشینوں کے نام ہمارے پاس اب بھی ان کے ثبوت موجود تھے، جو وقت آنے پر ہم عوام کے سامنے، بین الاقوامی اداروں کے سامنے، ملکی اداروں کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ موجودہ جو را کے ایجنٹ، جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، جو انڈیا کے سہولت کار ہیں، جو برسلز، بلجیم اور کینیڈا میں بیٹھ کر گلگت بلتستان کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو بھی وائس ہمارے پاس تھے، ان کے جو بھی ایویڈنس تھے، ہم نے میڈیا کو پیش کر دیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کی اکثریتی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے الحاق پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی ادارے اور ملکی ادارے، ان تمام عناصر جو گلگت بلتستان کے عوام کو گمراہ کر کے سی پیک کو سپرتاش کرنا چاہتے ہیں، دیامار بادشاہ ڈیم کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ہم
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ملکی سطح پر کارروائی ہونی چاہیے اور بین الاقوامی ادارے اس پر نوٹس لیں۔ ہم پرو پاکستانی نیشنلزم پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا نظریہ پاکستان کا مکمل آئینی صوبہ بننا ہے۔ یہاں پر جس شخصیت کی بات ہوئی مرحوم شہید وطن اور قوم پرست رہنما بانی قوم پرست حیدر شاہ رضوی کی، شہید حیدر شاہ رضوی گلگت بلتستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتے تھے، علاقائی حقوق کی بات کرتے تھے، نہ کہ وہ کسی بیرونی ایجنڈے کے متحمل تھے۔ میں ان کا قریبی ساتھی رہا، مگر آج تک ہم نے مختلف علاقائی ایشوز پر جو ہماری پولیٹیکل اسٹرگل تھی وہ ہم نے کی، مگر کبھی ہم نے کسی بیرونی ایجنڈے کو فوقیت نہیں دی، نہ ہی ہم دیں گے۔ شہید وطن حیدر شاہ کے نظریات کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے نظریات کو ہائی جیک کر کے سجاد راجہ نے UN میں مرحوم گلگت بلتستان کے شہید وطن اور قوم پرست رہنما کے نام سے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چند اور اہم مسائل اور پیچیدگیاں ابھی گلگت بلتستان سے وابستہ ہیں۔ ہم عالمی اداروں سے یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو را اور انڈین انوالومنٹ ہے گلگت بلتستان میں، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور بین الاقوامی ادارے اس پر فوری نوٹس لے، ورنہ گلگت بلتستان کے عوام کارگل وار کی تاریخ دہرانے کی ہمت اور جرات رکھتی ہے۔ گلگت بلتستان کے بہت سارے مسائل آرمی سے وابستہ ہیں، لہٰذا میں مطالبہ کروں گا کہ ان مسائل کے حل اور ادراک کے لیے اور جو گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہم جناب آرمی چیف آف پاکستان سے ملاقات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حیدر شاہ رضوی شہید کی بیٹی، والدہ، ان کی مسز، ہمارے گلگت بلتستان کے معروف عالم دین شیخ حسن جوہری صاحب، مذہبی اسکالر اخن عابد صاحب، ایڈوکیٹ عباس صاحب، گلگت بلتستان کے دیرینہ جو ہے سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بیرونی تسلط پیدا کی گئی ہے، اس سے گلگت بلتستان کے عوام نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری سیاسی، اخلاقی، معاشرتی ہم جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ عباس سفیر صاحب، مختصر سا تعارف کراتا چلوں، آپ تمام کا بھی انتہائی شکریہ۔ میرا نام عباس سفیر ایڈوکیٹ ہے، رہنما اسلامی تحریک پاکستان اور صوبائی امیدوار کتاب۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چند دنوں پہلے EU ڈسنفو لیب کی جو رپورٹ شائع ہوئی، اس میں جو انڈین انوالومنٹ ہے گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے اندر، جو کہ ایک عالمی تنازع کا حصہ ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فیک NGOs اور فنڈڈ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کشمیر کے بارے، گلگت بلتستان کے بارے خراب کیا جا رہا ہے۔ اور اس EU ڈسنفو لیب کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے، عالمی دنیا دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اس کا ایک واضح ثبوت 2-3 دن پہلے شہید وطن حیدر شاہ رضوی کے فرزند مہدی شاہ رضوی نے اپنے ویڈیو بیان میں جاری تمام حقائق کو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے فرانس سے رکھ دیا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے پیسوں کے استعمال سے گلگت بلتستان اور کشمیر میں اپنی انوالومنٹ چاہتا ہے۔ اور مہدی شاہ رضوی نے جس ٹولے کی نشاندہی کی ہے، میں بحیثیت ایک عام شہری گلگت بلتستان اور ایک سیاسی کارکن کے اس ٹولے کو بخوبی جانتا ہوں اور میری قوم بھی جانتی ہے۔ یہ وہی ٹولہ ہے جس کی مہدی شاہ نے نشاندہی کی ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو دن رات پاکستانی فوج پر بھونکتے ہیں۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو مذہبی عقائد پر حملہ کرتا ہے۔
یہ وہی ٹولہ جو گلگت بلتستان کے اندر فحاشی کے اڈے کھولنے کے مطالبے کرتا ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو ہمارے معزز علماء کرام کی پگڑیاں اچھالتا ہے، جو ہمارے اسلامی بنیادی عقائد پر تنقید کرتا ہے، جس سے ہماری 20 لاکھ کی آبادی کے جو احساسات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ وہی ٹولہ ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے انحراف کرتا ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو آباء و اجداد کے نظریہ الحاق پاکستان کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ ہم بحیثیت وارث گلگت بلتستان کے آباء و اجداد کے جو فیصلہ ہمارے آباء و اجداد نے الحاق پاکستان کا کیا، ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ اور یہ جو ٹولہ ہے جس کی نشاندہی کی ہے، گو کہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اگر ان پر بروقت کارروائی نہ ہوئی، ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن نہ ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکے، کیونکہ انڈیا 160 ممالک میں اگر EU ڈسنفولین میں آ چکا ہے، اپنے معاملات کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کے ذریعے، اس ٹولے کے ذریعے بھی بہت سے معاملات پاکستان میں، گلگت بلتستان اور AJK میں خراب کر سکتا ہے۔ تو اس ٹولے کا تعاقب ہونا چاہیے، اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے یہ جو ٹولہ پاکستان آرمی کے خلاف بھی نعرے لگاتا ہے، جس نے اکسایا پاکستانی فوج کو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھو، اس ٹولے سے پوچھو جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اس سے پوچھو کہ اگر پاکستان فوج مرد آباد تو پھر کون سی فوج زندہ باد؟ یقیناً وہ ہندوستان کی طرف ہمدردی رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی ہے، سینکڑوں دنوں کا لاک ڈاؤن تھا، کرفیو تھا، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی، ہزاروں نوجوان ہمارے قتل ہوئے۔ اس ٹولے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے، مہدی شاہ رضوی نے جس کی نشاندہی کی ہے، کیا ان کو کبھی وہ مظالم یاد نہیں آتے؟ ہمارے سڑک کے چھوٹے سے کھڈے کو میں لے جا کے ریاست پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں، وہاں عصمت دری ہوتی ہے، اور اس ٹولے کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ میری قوم ان سے سوال پوچھتی ہے اور وہ جانتی ہے۔ اور آج تک یہ جس ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس ریاست سے محبت ہے۔ آج تک تحریک جعفریہ پاکستان سے لے کر PTI گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے، اب تک کا جو مینڈیٹ ان پارٹیوں کو ملا ہے، وفاقی پارٹیوں کو، وہ صرف ایک ہی نعرے پر ملا ہے کہ اس کو مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے گا۔ انڈیا آرٹیکل 35A اور 370 کا خاتمہ کر چکا ہے، انڈیا نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے متنازع خطے کے بارے میں۔ اب ہمیں مزید جو ہے اس تنازع کا، ہم سمجھتے ہیں کہ شکار نہیں رہنا چاہیے۔ انڈیا نے جب وہاں پر یہ جو متنازع خطے کے حقوق غصب کر دیے، تو اب ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان بھی بھرپور جرأت کا مظاہرہ کرے جیسے کہ کرتا ہے، اور گلگت بلتستان کو ان کے عوام کے دیرینہ مطالبے کے تحت مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ طیبہ رضوی، شہید سید حیدر شاہ رضوی کی بیٹی ہوں میں۔ میرے والد شہید حیدر شاہ رضوی ایک محب وطن پاکستانی تھے اور ایک مخلص پاکستانی تھے، جس کا ثبوت میرے بھائی نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اور اپنے پیغام کے ذریعے جو پیرس سے انہوں نے دیا ہے، اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ میرے والد نے پوری زندگی جد و جہد کری، شہید نے، اور انہوں نے مطلب کہ انہوں نے اپنی قوم گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کری، انہوں نے کبھی کوئی متنازع بات نہیں کری، اور کوئی غلط بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، اور میں کبھی وہ ہندوستان کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ اور جہاں تک میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کا بیان کی متعلق بات ہے، اس میں انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ جب انہوں لاک ڈاؤن کے بعد کرونا آؤٹ بریکس میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا، تو مہدی شاہ رضوی نے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو
جو مطلب پاکستان کے شرپرست عناصر تھے اور باہر ملک میں رہتے تھے، انہوں نے کانٹیکٹ کر کے مہدی شاہ رضوی کو ورگلانے کی کوشش کری اور ان سے فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف اور سارے مطلب پاکستان کے خلاف مختلف پیغامات لیے ان سے، اور شارٹ کلپس بناتے تھے اور جو بھی کرتے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو برگلانے کی کوشش کریں کہ آپ کے والد کو سید حیدر شاہ رضوی شہید کو فوج نے مارا اور پاکستانی اداروں نے مارا. یہاں تک کہ میرے بھائی نے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو مطلب انہوں نے کافی دفعہ پیسوں اور اس کی بھی بات کری کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے اور آپ کی فیملی کو سپورٹ کریں گے. پھر میرے بھائی جو تھا اس نے اس بات کو مطلب ہمیں بتایا اور محمد شریف صاحب کو بتایا اور سب کو بتایا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے، انڈین انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور باقی جو بھی ہے. تو اس پہ پھر اس کے بعد میرے جو شہید والد صاحب شہید حیدر شاہ رضوی خود مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں خود ڈاکٹر بھی ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کری کہ قوم کی خدمت کی بات کری اور پاکستان کی بات کری کہ پاکستان کی قوم کی آپ کو خدمت کرنی ہے. وہ خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. تو وہ کیسے ایک محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ میرے بھائی سے کی جو شارٹ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی اس سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور جو انڈین لابی اور جو باہر ملکی جو لوگ تھے شرپرست عناصر نے ان کے ساتھ جو رابطہ کرنے کی کوشش کر دی ان سب کو بے نقاب کر دیا. جس کی وجہ سے میں یہ قوم کے نام پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایسے عناصر جو بغیر ملک میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو رابطے کرتے ہیں اور ان سے آپ مطلب کہ ان کے ہتھ کنڈے میں آپ نہ آئیں اور ان کو بے نقاب کرنے میں پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کے کو ساتھ دیں. پھر آخر میں یہ ہے کہ میں مطالبہ کرتی ہوں پاکستانی فوج اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ہماری فیملی کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور اس کو پوری سپورٹ اور اس کی ساری مطلب کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو سارا تحفظ فراہم کیا جائے. شکریہ. یاد رکھو کہ جب تک جو ثقافتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ثقافتی غلبہ 3 قسم کا ہے. نمبر 1 ہے مذہب کا، یعنی یا وہ شیعہ یا سنی جو بھی ہے، اسلام کا غلبہ، یعنی ہر چیز میں کلمے کا رشتہ، ہر چیز میں جی اسلام اللہ یہ، اور پھر یہ بات ہے کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ملتا ہے جی، تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ملتا. تو لائن سیدھی ہے.
अल्लाह ये, और फिर ये बातें कि जी अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं मिलता है जी, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं मिलता, तो इस तरह की बातें करके लोगों को सुलाना, नम करना, जो दूर करना, अपनी जिंदगी के हालात, अपने मुल्क के हालात, अपने कब्जागिरी के हालात से निजात हासिल करने की उमंग को खत्म करने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो गया हमारे ऊपर दो कौमी नजरिए का गलबा कि हिंदू एक अलग कौम, मुसलमान एक अलग कौम, तो कौमें जो है उनका तशख़्ख़ुस जो है वो मजहब के साथ नहीं होता। और तीसरी चीज जो है वो नजरिया पाकिस्तान, ये तीन हमारे दुश्मन हैं। इन तीनों के जब तक ये हम अपने जो भी 25-30-40 नौजवान हैं उनके दिमाग से जब तक इसको खुर्ज के नहीं निकालेंगे उस वक्त तक हम सेकंड स्टेप नहीं उठा सकते। सेकंड स्टेप है कि इस रियासत के खिलाफ लड़ना और बगैर मसला जो कि दुनिया में कोई भी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर सकती, इसके लिए बेटा जंग लड़नी पड़ती है। तुम्हारा ये भाई हर वक्त तैयार है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये समझें कि आपका बलोचों से, सिंधी कौम पड़ोसों से, सबसे रास्ता है, समझ रहे ना। आपको जो कहा है बस उसको थोड़ा सा करें, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, चीज़ें और पुख्ता हो जाएंगी। हम ऐसे थोड़ी है कि बाकी दुनिया जो है वो अपनी मुसल्लह लड़ाई लड़ रही है, हम दूसरा लड़ाई जो ऐसे हैं ये भाषा डैम नहीं रोक सके। हम तो इसको समझे, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। 4 साल है हमारे पास, 2024 तक मोदी की गवर्नमेंट चलेगी तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा हमारे पास। ये ऑप्शन सिर्फ हमारे पास इसलिए कि मोदी की गवर्नमेंट है। ये हैं सज्जाद राजा और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस तरह के ओछे हथकंडे और ऐसे नज़रियात की पढ़ाई पढ़ाकर गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी बलूचिस्तान के हालात जैसा बनाना चाहते हैं। इन एजेंडों का सख्त से सख्त गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान के सियासी शऊर रखने वाले शख्सियात मुकाबला करने का अज़्म करते हैं और अहद करते हैं। दूसरी शख्सियत थे सज्जाद राजा। इन दोनों के नाम जिस इंफोलेट रिपोर्ट में अया हो चुके हैं, जैसे कि आप सबके इल्म में है। इनका कहना ये है कि कल इन्होंने हमारे फर्जंद कौम परस्त शहीद सदर शाह के बेटे, जिन्होंने इनकी उस चाल से निकलने के लिए इनके पूरे सबूत और एविडेंस मीडिया के सामने रख दिए, उनके ऊपर झूठे क्लिप्स बनाकर इल्ज़ामात लगाए इंडियन मीडिया के ताउन से, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और इनके ऐसे ओछे हथकंडों का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अहलाकी, माशरती, सियासी और सिफारती मुकाबला करती रहेगी। शेख हसन जाफरी साहब। मोहतरम काबिल एहतराम सहाफ़ी बरादरान, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त ऐसे वक्त निकाल कर एक हसास मसले को उजागर करने के लिए यहाँ हमें मौका फराहम किया, जिसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। मैं बता रहा हूँ जी, मैं मोहम्मद हसन जौहरी हूँ। मोहम्मद हसन जौहरी मुस्लिम लीग के पाक से मेरा ताल्लुक़ है, जिला शिगर का मैं सदर हूँ। जैसा कि मुझसे पहले बरादरान और फ़ाहद ने आपके खिदमत में इस मसले के बारे में या मुश्किल के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है, मैं इसकी तरफ दोबारा जाना नहीं चाहता। मेरे पास 3 और 4 नुक्ते हैं, मुख्तसर तौर पर मैं वही बयान करके आपके खिदमत को तमाम करूँगा इंशाअल्लाह।
सबसे पहले ये हैं कि जिस खत्ते में केटू जैसे बुलंद वाला पहाड़ मौजूद हों, उस पहाड़ के बासी इतने गिरे हुए कभी सोच ही नहीं सकता कि वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर किसी हिंदू या काफिर मुल्क के साथ इल्हाक होना चाहें या उसके साथ काम करना चाहें। लेकिन बदकिस्मती से हालिया रिपोर्ट और सैयद मेहदी शाह रज़वी के बयान ने ये वाज़ेह व आश्कार कर दिया कि बैरून मुल्क व अंदरून मुल्क मुकीम कुछ शरपसंद और राह के इशारों पर काम करने वाले मुखरे गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर और बलूचिस्तान जैसे हालात से दो चार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुसलमान हैं, वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर अक़ीदा रखते हैं। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता ज़मीनी नहीं बल्कि अक़ीदा व ईमानी है। वहाँ के हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर खातून कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन भारत के इन मज़मूम अज़ाइम को वहाँ पर कभी भी अमल पेरा होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में बेहतर है कि हम खुद आलमी इंसानी हुकूक से तकाज़ा क्यों न करें, अक़वाम मुत्तहिदा से तकाज़ा क्यों न करें कि आप एक तरफ इंसानी हुकूक के नारे लगाते हैं, आप एक तरफ दुनिया में अमन व अमान के नारे बुलंद करते हैं, और आपकी आंखों के सामने गिलगित बल्तिस्तान के तालीम के लिए अपने वतन से दूर जाने वाले सादा लोग मेरे गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को वरगला कर मुल्क दुश्मन बनाने पर मुसिर हैं। लिहाजा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और मुतासिरा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी व हिमायत करते हुए इन अदालतों से तकाज़ा करते हैं, इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि भारत के इस तरह के गिनौने अज़ाइम के नोटिस लिया जाए और अदालत के हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने आया किया जाए। मेरा दूसरा मुतालबा ये है, मेरे सहाफ़ी बरादरान, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह के करम से हम एक ला इलाहा इल्लल्लाह से मंसूब मुल्क में रहते हैं। हमारे अदालत आलिया के जहाँ जिसके दीवार पर ये दिलु हुआ अक़रबुल तक़वा जैसे बरजस्ता तरीन आयत इलाही लिखा हुआ है, इस अदालत से भी मैं तकाज़ा करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान गुज़श्ता 73 सालों से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, तो कम से कम कदर करें इस मिल्लत का, इस गिलगित बल्तिस्तानियों का। खुदारा हम बिजली के हवाले से, रोड के हवाले से, तालीम व सेहत और रोज़गार के हवाले से अगर हम एहतिजाज करते हैं, जलसा जुलूस निकालते हैं, तो इसका मतलब हम रियासत मुखालिफ वहाँ पे कुछ अज़ाइम नहीं रखते हैं। हम नऊज़ बिल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असलहा उठाकर बाकायदा जंग करने के अज़ाइम नहीं रखते हैं। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि हर वो जो मुसलमान और पाक व पाकीज़ा ख़ानदान में पैदा हुआ हो, वो कभी भी अपने बरादर हम अक़ीदा व हम ईमान मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना नहीं चाहेगा। इज़ा अदालत आलिया से मेरा गुजारिश है कि हमारा मेहदी शाह साहब के बयान की रोशनी में बाहर बैठकर, चाहे वो अंदरून में हो चाहे वो बैरून में हो, इस तरह के सादा लोग जवानों को गुमराह करने वाले ताकतों को अदालत आलिया करार वाकई सज़ा देने में अपना किरदार अदा करें। और मेरा तीसरा मुतालबा ये है, और मैं क्योंकि मेरा आदत है मैं शिकायत किए बगैर अपने बातों को वो मुकम्मल नहीं करता। इस साल आप लोग सन 2020 के इलेक्शन में वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ़ लाए,
जिमरे बिलावल भुट्टो के पीछे चले गए, मरियम नवाज शरीफ के पीछे चले गए, अली अमीन गंडापुर के पीछे चले गए। भाई आप इतने मसाफत तय करके वहाँ तशरीफ़ लाए थे तो कम अज़ कम वहाँ के अवाम से भी एक दो राय जानने की कोशिश करते, ताकि आपको करीब से मालूम होता कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ किस तरह शिद्दत के साथ मोहब्बत रखते हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मैं अपील करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, मोहतरम अब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का जुर्अत पैदा करें। मज़ीद आप दुश्मनों को मौका फराहम न करें। बलूचिस्तान जैसे हालात गिलगित बल्तिस्तान में पैदा करने के इन अज़ाइम को आप रोक सकते हैं, आर्मी चीफ रोक सकते हैं, सहाफ़ी बरादरान रोक सकते हैं, हमारे तालीम याफ्ता मोमिन मुतदय्यिन तबका रोक सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और 5वां और आखिरी नुक्ता ये है, मैं तनकीद नहीं करता, दिस इन्फोले रिपोर्ट आपके मीडिया पर तकरीबन गुज़श्ता 10 रोज़ से ज़्यादा नशर हो रहे हैं। न गिलगित बल्तिस्तान से न यहाँ वफाक लेवल से किसी भी पार्टी ने इस पर अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया। यहाँ से आप इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वहाँ के अवाम के इज़्ज़त नफ्स को, वहाँ के अवाम के तालीम को, वहाँ के अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो भी हिंदुस्तान जैसे गिरावनी अज़ाइम रखने वाले मुल्क जो बैरून मुल्क बैठ के यहाँ पे इंतजार फैलाना चाहते हैं, आपका कोई किरदार नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से गिलगित बल्तिस्तान के कौमी असम्बली मेंबरान से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप लोग करारदाद पास करें हिंदुस्तान के खिलाफ और आलम इंसानियत के सामने भारत के मज़मूम चेहरे को, मकरूह चेहरे को दिखाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे सहाफ़ी बरादरान, आप में से बहुत सारे जवान हैं, आप में से बहुत सारे बुजुर्ग हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, शायद मैं इतने वाज़ाहत के साथ आपके सामने पेश न कर सकूं, लेकिन एक चीज़ मुझे मालूम है, सहाफ़ी बरादरान के अंदर बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात भी हुआ करता है। आप लोग हमारे अल्फाज अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो हमारे जज्बात को खुदा समझने की कोशिश करें। आखिर में मैं सलाम पेश करता हूँ जो गिलगित बल्तिस्तान का वाक़ई चेहरा है, फ़ख्र है, शहीद लालिक जान को। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहादुर जवानों को जो वतन अजीज़ के लिए सियाचन से लेकर तुरखम के बॉर्डर तक अपने सीने को दुश्मन के सामने सिपर किए हुए हैं, ताकि ये मुल्क और ये रियासत सेहत व सालिम रहे। और दुआ हो कि खुदा या पाक परवरदिगार, ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तेरे नाम के साथ मंसूब है। हम गुनाहगार सही, लेकिन आपका कुदरत, आपके कब्ज़े या कुदरत में ये है कि इस मुल्क के खिलाफ जो भी दुश्मन के अज़ाइम हैं, पाक परवरदिगार इन अज़ाइम को आप नाकाम और नामुराद करार दे दें या अल्लाह। पाक परवरदिगार इस वक्त पूरी दुनिया ये कोरोना के वबा की वजह से मुश्किलात में है। आलम इंसानियत को कोरोना से नजात अता फरमा। पाक परवरदिगार काफ़ी अरसे के बाद हमारे तालीमी मराकिज़ के दरवाजे खुले हैं। पाक परवरदिगार मेरे पाकिस्तान के हर बच्चा तालीम याफ्ता होकर अपने मुल्क को दुनिया के बुलंद तरीन मेयार के मुल्क बनाने में किरदार अदा करने की तौफीक इनायत फरमाएँ। आखिर में मुझे एक जुमला जो मुझसे रह गया है, खुदा के लिए ये मुझे इजाज़त दे दें, वो ये है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मुल्क, अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क, गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी नौजवान जो ज़ेर तालीम हैं
उनको गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझने की गलती मत करें। आप एक खुददार, आप एक मोमिन, आप एक इज्जत नफ्स रखने वाले कौम से आपका ताल्लुक है, लिहाजा आप एक मुसलमान होने के नाते कभी भी ज़मीर की सौदाबाजी, कभी भी मुल्क के सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस न हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कनीज़ा है, वालिदा सैयद मोहम्मद नफीशा रज़वी की। मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है कि उसने मुल्क दुश्मन अनासिर का चेहरा बेनकाब किया। ये मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे दूध का हक़ अदा किया, मुल्क के गद्दारों से दूर रहा। ये मेरी बदकिस्मती समझ लें या उसकी बदकिस्मती, पूरी दुनिया कोविड-19 में की ज़द में जब आई तो बहुत मुल्क पूरा और बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी थी। अब ये हुआ कि उसने वो तालीम के लिए गया था यहाँ से और उसके अखराजात और उसमें मसला हुआ, हमारा राब्ता नहीं हो पाया क्योंकि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से बेइंतहा मुतासिर हो चुकी थी। इसी को लेकर, इसी बेचारे मेरे बेटे की इस परेशानी को लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, क्योंकि ना हम पैसे, आपको पता है, ना पैसे यहाँ से भेज सकते थे, ना वो हमसे कोई रब्ता कर सकता था। मैं ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, मैंने अपने उससे ही लोन लेकर गवर्नमेंट से उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मम्मा मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि अपने मुल्क की खिदमत कर सकूँ आके कामयाब होकर। अब हमें नहीं, वो स्टूडेंट एक वीज़े पे गया था, हमें नहीं मालूम कि बैरून मुल्क दुश्मन अनासिर इतने सरगर्म थे कि उसको उन्होंने किस तरह ले लिया। फिर उसके बाद ये तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि वतन जो है एक धरती है और एक माँ जैसी है। वतन की मोहब्बत ना हो तो कुछ भी नहीं। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने माँ के दूध का हक़ और वतन की मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया और दुश्मनों के अनासिर को बेनकाब कर दिया। और मुझे इसके कोई वो नहीं है, बस मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से मुतालबा करती हूँ, उसकी जान को ख़तरा है क्योंकि उसने बहुत मकरू फ़रेब चेहरों को सामने किया है। वो रा के एजेंट हैं या जो भी हैं, जो हैं हमारे दुश्मन हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान को ना मानने वाला वो हमारा दुश्मन है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारे ईमान के जुज़ में वतन की मोहब्बत हमारी शामिल है। इसलिए मैं बहुत फ़ख्र है मुझे अपने बेटे के उस पर कि उसने मुल्क की धरती से मोहब्बत का सबूत दिया। बस उसकी मैं यही मुतालबा करती हूँ कि उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उसे हिफाजत से हमारे मुल्क पाकिस्तान उसको लाया जाए, वापस लाया जाए। ये भी दरख्वास्त आर्मी चीफ से करती हूँ कि हमारी फैमिली को खुदारा सपोर्ट फ़राहम किया जाए। जी मुअज़्ज़िज़, आपका सवाल था कि गिलगित बल्तिस्तान में इस नेटवर्क ने जो इंडियन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट में आया हो चुका है, कितने रकम लगा दी होगी इसका तो हमें नहीं अंदाज़ा। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान के तलबा, सियासी शख्सियात और मजहबी शख्सियात की जहन साजी करने के लिए गुज़श्ता 8-10 सालों से ये नेटवर्क सरगर्म अमल है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी जहन साजी हुई जिसका हमें अफसोस भी है और हम इस बात का इयादा भी करते हैं कि इनका हम माशरती, सियासी, अखलाकी आइंदा मुकाबला भी करेंगे कि एक नारा लगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। वो नारा इन्हीं नेटवर्क्स की जहन साजी का नतीजा था। सर, आपने कहा कि आर्मी चीफ से आप मुलाकात भी करना
जी इंशाल्लाह हमने मीडिया की वसअत से जनाब आर्मी चीफ से गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वालिहाना मोहब्बत रखती है। हम गिलगित बल्तिस्तान के चंद मसाइल जो के आर्मी से वाबस्ता हैं, खुसूसन बॉर्डर एरियाज़ के, और कुछ और भी हमारे पास बहुत सारे एविडेंस अभी मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद थे। क्योंकि अभी तक तो हमारे जो भाई हैं सईद मेहदी शाह रज़वी, जो मेरे शहीद साथी के बेटे हैं, वो अभी जब तक किसी महफूज मुकाम पर नहीं पहुंचते हम ये मज़ीद शवाहिद एक्सपोज नहीं कर सकते। जब वो किसी महफूज मुकाम पर आएंगे पाकिस्तान या वहाँ वो सिक्योर हो जाएंगे तो हम मज़ीद शवाहिद जो है मीडिया के सामने रख देंगे। देखिए जी, इन NGOs की रजिस्ट्रेशन, जैसे कि डिसइन्फोलेब रिपोर्ट ने बता दिया कि पूरी दुनिया के अंदर कम से कम 144 ममालिक के अंदर इन्होंने ये नेटवर्क फ़हाल किया, और उसमें आज गुज़श्ता 15 साल पहले अफ्रीका के एक मुर्दा शख्स के नाम पर जो NGO रजिस्ट्रेड थी उसमें उन्होंने एडिटिंग की, और ये तमाम नेटवर्क्स बैनुल अक़वामी इदारों में, UN में, UNCIP में चले गए, और पिछले गुज़श्ता 15 सालों से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं और जहन साजी कर रहे हैं। जो भी हमारे अभी कम से कम 150 से 200 तलबा यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं, 21-22 रियासतों में। हमें अभी उनका भी जो है खदशा है कि कहीं ये गुमराह ताकतें उन तक भी रसाई हासिल न करे। अगर ऐसा होने की सूरत में हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी तौर पर हालात बहुत मुश्किल और नागज़िर होंगे। जी 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 सही। जब पता लग गया कि आपके अपने अंदर लोग मौजूद हैं, आपके हमदर्द बन के आपको पैसे का लालच देके आला तारीफ के लिए कोई फैसिलिटेट करके वो इस्तेमाल करते हैं, अब आप बाकी वहाँ पे यकीन लोग मौजूद होंगे, उनके लिए आपके क्या जहन में है कि हुकूमत क्या इक़दाम करे और आप सोसाइटी के वहाँ के लोकल्स हैं वो क्या करें कि ऐसे जो नासर हैं वो आप नसीब से ना करें? देखिए, जो बैरून मुल्क नेटवर्क्स एक्टिव हैं, जिनकी अब गिलगित बल्तिस्तान तक भी अब बहुत सारे शवाहिद आ चुके हैं, रसाई हो चुकी है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर आमोज़ और जो है ऐसे वो किए गए हैं। जितने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा स्कॉलरशिप में बैरून मुल्क जाएंगे, हमें उम्मीद और यकीन है कि वो तमाम तलबा और मुस्तक़बिल करीब में गिलगित बल्तिस्तान की सियासी शख्सियात को, मजहबी शख्सियात को ये हुकूमत मौका फराहम करे कि वो बैनुल अक़वामी इदारों तक जाए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ रखे और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल भी बताएँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नज़रिया इलाक़ पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, इन गुमराह कुन ताकतों की वजह से कम 50 से 60 हज़ार मकबूजा कश्मीर के अंदर शोहदा हैं, इस जंग का हिस्सा बने, आज़ादी की जंग का। इन्होंने कभी उनके हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की, न ही उनके बारे में जो है कोई बात की। इन्होंने मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क्स बनाए हुए हैं और इन्होंने पैम्पलेट तकसीम, आज कल ही जो मेहदी शाह रज़वी के बारे में एक बहुत बड़े नेटवर्क ने, जो इनके मेहदी शाह साहब ने जिनको एक्सपोज किया है, वो एक तंजीम के नेटवर्क ने मैं पूरे हमारे सिकरदू शहर के अंदर पैम्पलेट तकसीम किए, ऐसे पैम्पलेट तकसीम किए जिससे आम नौजवान और तालिब इल्म गुमराह हो सकता है। जी जी। अगर आप जैसे कह रहे हैं हुकूमत की एक्शन जब हुकूमत तमाम नासर के खिलाफ एक्शन लेगी तो फिर वहाँ पे रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान के वहाँ की तरफ से आएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है? बिकॉज वो जब गवर्नमेंट एक्शन करने जाएगी तो फिर वहाँ पे जो रिएक्शन आएगा उसको आप कैसे देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान की 99% अवाम जो है मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है और 72 सालों से पाकिस्तान का पूर्वांचल सूबा बनने के लिए जिद्दोजहद करती है। कभी हमारी अवाम ने किसी आज़ादी की बात नहीं की और कभी हमारी अवाम ने कोई खुद मुख्तारी की बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात की।
देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन तो होगा। कुछ गुमराह लोग हैं जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है और वहाँ की 20-22 लाख अवाम जो है उस नाम के जो है जद में आ रही है। चंद अनासिर हैं, ये मुट्ठी भर अनासिर हैं, अगर इनका जो है मुहासिबा हो जाता है तो मुझे यकीन है कि उस पर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की अवाम उसको जो है दाद देगी, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम उसको अप्रिशिएट करेगी, बजाय इसके कि ऐसा अनासिर के हक़ में कोई बात की जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की 99% अवाम मुहिब वतन पाकिस्तानी बनने की ख्वाहिश रखती है और उनका मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा बने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क के दीगर सूबों की तरह तरक्की करे और मुल्क के सालमियती के लिए अपना किरदार अदा करे। देखिए जी, ये लोग जो बाहर हैं नेटवर्क्स उनकी बात करें आप, देखिए ये लोग अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं, उसको एक एनजीओ की शक्ल में रजिस्टर्ड कर देते हैं, जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनमें रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और ये किसी भी एनजीओ के ज़रिए, जैसे कि ये श्रीवास्तव ग्रुप है, ये इंडिया का मुकम्मल जो है एक नेटवर्क है जो एक्सपोज भी हो चुका है, उसके अब बैकअप ले लेते हैं या कोई और बैकअप पर ये अंदर एंट्री मार देते हैं। उनका एक ही मकसद है, जैसे कि हमारे अभी हैदर शाह साहब का नाम इन्होंने सज्जाद राजा ने यूएनओ में लिया। अदाकारी की इंतहा ये है कि उन्होंने रोना धोना कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैदर शाह रजवी को रियासती इदारों ने शहीद कर दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी मिसेस, उनकी बेटी, गिलगित बल्तिस्तान के सियासी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने इस तरह से दुनिया और आलमी इदारों को गुमराह कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जहन में इस बच्चे को, मेहदी शाह को भी इसी तरह जहन साजी की कीजिए, आपके वालिद को तो जो है वो एक बड़ी शख्सियत थे और ये जम्मू कश्मीर के अकायम की वहदत के जो है ना लीडर थे। इस तरह से इनके गुमराह जो है मकासद थे और हैं, और मुझे लगता है जब तक इनका मुहासिबा नहीं होगा और पाकिस्तान के और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के सियासी शख्सियात को जो जम्मू कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए, जो अभी देखें हमारा मुतालिबा है, हमारा नज़रिया है कि करगिल बनेगा पाकिस्तान, जम्मू बनेगा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलगित बनेगा पाकिस्तान और बल्तिस्तान बनेगा पाकिस्तान। अच्छा जी फैसल, ये फरमाइएगा कि आपने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर जो आला हुकाम है उनसे मुलाकात और उनसे जो है वो इस मामले की परेशानी लेने की अपील की है। क्या वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गवर्नर से आपकी कोई मुलाकात हुई है इस सिलसिले में और उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि पहला जो काम है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें करना है, नंबर 1। दूसरा ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं सैयद मेहदी शाह की तरह बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनमें से बेशतर जो हैं वो मुल्क वतन शहरी हैं पाकिस्तान के। उनके साथ आपका कोई राब्ता या उनका रिएक्शन क्या है सैयद मेहदी शाह के हवाले से? फ्रांस के अंदर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद के अंदर कश्मीरी कम्युनिटी मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मौजूद हैं, तो क्या वो लोग जो हैं वो कोई मेहदी शाह को सपोर्ट कर रहे हैं? इस हवाले से इस हवाले से आपका अपनी कम्युनिटी से बाहर राब्ता हुआ हो? जी देखिए, आपने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के बारे में सवाल किए हैं। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है वो मेंबरान काम करते पाकिस्तानियत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, उस हसास खत्े के अंदर जो है लोगों के जब इंडिया की इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है तो वो अगर जहन साजी करने का किरदार अदा करते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। आपका दूसरा सवाल है कि वहाँ फ्रांस में जो तालिब इल्म हैं, देखिए आप खुद मीडिया में देख रहे हैं, वहाँ जितने भी तालिब इल्म हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं मेहदी शाह रजवी के इस इक़दाम के बाद कि सब प्रो पाकिस्तानी नेशनलिज़म, मतलब इलाकाई बुनियादी हुकूक और मसाइल पर बात करेंगे, मगर पाकिस्तान का मुकम्मल सूबा बनने के लिए उन्होंने किरदार अदा करने का अहदा कर रखा है और उस पर जो है ना बहुत सारी तंजीमों के स्टूडेंट्स, तंजीमों के जवानों और वहाँ पर मुकीम जवानों ने जो है अपने स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं जो मीडिया के अंदर है और आप लोगों ने भी मुलाहिजा फरमाया होगा। शुक्रिया। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।